Good evening everyone. Now I'm going to start further videos as per your request, as videos of other different topics like in science as well as in English, right? So I'm going to make further videos, but I have certain work commitments, so I will be able to post only 2 to 3 videos a week. So I will try my level best to post as many as I can, because in science there are a lot of lessons which are remaining from your NCERT textbook that I will be doing it further. So to start with, I'm starting with lesson 8, cell structure and functions, which you have requested the most. So I'm going to start that lesson first. So let us see how much we can cover, so all of you pay attention and understand. One more thing I would like to tell you is that I am going to make more technologically advanced videos, but for that I need certain instruments, certain technological aids to make my videos more techno savvy. So I am trying my level best to learn all the new technologies to make it more advanced, right? However, it will take a little time because I have certain work commitments. So I will be trying and making more advanced videos as soon as possible. But for now, I am making it just in the simple format. So just go through it, okay? Thank you so much. Okay, now lesson 8, cell structure and functions. Now, what is a cell? A cell is firstly the structural and functional unit of the body. मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब है कि cell is something, the smallest part of your body is called as cell. सबसे छोटा part जो है आपकी body का, that is called as cell, right? आपकी बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन, आपके हेयर जो हैं, आपके नेल्स हैं, या आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, सारे सेल से बने हुए हैं. सो सेल इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of your body, of any body, in fact of any living organism. For example, ये भी होता है, क्या बोलते हैं, plants, animals, everyone, right? So now you have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? In functions को आप list out कर सकते हो. Different sets of organs perform the various functions you have listed, right? For example, कौन से functions होता है? Digestion होता है, then excretion होता है, circulation होता है, body पार्ट्स में आपके सब ब्लड सर्कुलेट होता है. उसके बाद प्रोटेक्शन भी है, सम ऑर्गन्स प्रोटेक्ट यू. सेंसरी ऑर्गन्स कुछ होते हैं जो आपको सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, उसका एक्सपीरियंस कराते हैं. तो ऑल दीज आर कॉल्ड एज your sensory organs, right? So different organ of your body performs different function. So how are they carried out? In this chapter you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell, right? It is the basic, underline this point, structural unit of an organ, which is the cell, right? As I explained you, each and every organ of your body is made up of a single unit, which is cell. ऐसे बहुत सारे cells एक साथ में मिल करके एक बड़ा सा टिश्यू बनाते हैं, इसको टिश्यू बोलते हैं. टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज ऐसे इकट्ठा होकर के ऑर्गन बनता है. ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गन्स इकट्ठा होकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, राइट? एंड दैट वे आवर बॉडी इज़ फॉर्म्ड, राइट? सेल्स में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स, राइट? जैसे वॉल को बनाने के लिए ब्रिक्स होती हैं, वैसे ही सेल्स आर द ब्रिक्स ऑफ आवर बॉडीज, राइट? ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. Now 8.1, discovery of the cell, right? So what is the discovery of the cell? Robert Hooke in 1665. So Robert Hooke, what did he do? ऑब्जर्व्ड स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क है ना, एक ट्री होता है जिसका जो बार्क होता है, बार्क मतलब उसका जो स्टेम का पोर्शन है, वो पोर्शन बाहर से सूख के ब्राउन हो जाता है, एंड इट बिकम्स हार्ड एंड स्पॉन्जी.
दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क. और कॉर्क को एज अ एयर टाइट कंटेनर्स को एयर टाइट करने के लिए वो यूज़ करते थे. जैसे बॉटल्स में वो ऐसे इंसर्टेड होता है, राइट. सो पुराने ज़माने में काफ़ी सारी बॉटल्स में उसको क्लोज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था. तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ही टुक the slice the some portion of this cork and he observed it under a सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. मतलब सिंपल सा जो मैग्नीफाइंग लेंस था उसके नीचे उन्होंने देखा. तो उनको क्या देखा, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री. ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व्ड देम अंडर अ माइक्रोस्कोप. ही नोटिस्ड पार्टीशनड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन कॉर्क स्लाइस. ऐसे कंपार्टमेंट्स उनको दिखे, राइट. ओके, these boxes appeared like a honeycomb. honeycomb जो होता है ना, honeycomb ऐसे दिखता है. मतलब हनी बीज जिसमें रहती है वो honeycomb looks like this. It has got partitions like this in between and there are chambers inside. यहाँ पे हनी बीज वो हनी इकट्ठा करती है. ओके, so he noticed that one box was separated from the other by a wall or a partition. Hook coined the term cell for each box. What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells, right. वो dead cells थे जो उन्होंने observe किए थे. वो cells of living organisms could be observed only after discovery of improved microscopes. मतलब इतना वो छोटा होता है ना कि improved microscopes मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का जब इन्वेंशन हुआ उसके बाद ही सेल्स को ऑब्जर्व करना पॉसिबल हुआ, राइट. तब तक सेल के बारे में इतनी जानकारी किसी को भी नहीं थी, राइट. इवन आफ्टर रॉबर्ट हुक इन्वेंटेड दीज सेल्स, उसके भी कई सालों के बाद ज़्यादा इन्वेंशंस इसके बारे में हुई और हम लोग अलग अलग टाइप के सेल्स को जान पाए, राइट. Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. Very little was known about the cell for next 150 years after Robert Hooke's observation. मतलब रॉबर्ट हुक ने ये सेल को ऑब्जर्व किया, ये टर्म बनाया सेल, उसके 150 साल के बाद ही कोई और रिसर्च हो पाई क्योंकि तब तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स ही इन्वेंट नहीं हुए थे, राइट. Today we know a lot about cells, cell structure and its functions because of improved microscopes having high magnification. Now जैसे हमने आपके लेसन 2 में पढ़ा था, लेसन 2 में हमने क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, उसमें हमने अमीबा, पैरामेशियम, फिर काफ़ी सारी algae और उसके बाद ये फंगाई, ये सब को पढ़ा. बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब क्या है, ये सिंगल सेल्स है, एक सेल के ऑर्गेनिजम्स है, राइट. और मतलब जैसे मैंने आपको बिग बैंग थियोरी समझाया था कि कैसे एग्जिस्टेंस में आए हम लोग, कैसे एग्जिस्टेंस में आए, दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू हाउ देर वॉज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. इट इज़ जस्ट अ थियोरी बिकॉज जब तक वो हुआ तब तो कोई जिंदा नहीं था उस टाइम पे, राइट. धीरे 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 दैट बॉल ऑफ फायर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट पीसेस ऑफ स्टोन्स, राइट. और एक बड़ा सा पीस सेंटर में रह गया विच बिकेम द सन, और दूसरे छोटे पीसेस जो उसके अंदर से अलग हुए थे वो उसके आसपास में घूमने लगे थे, दोज बिकेम द प्लैनेट्स. और वो भी आग के टुकड़े ही थे, बहुत बड़ा स्टोन था जो जल रहा था, राइट. एंड आग के टुकड़े थे. धीरे 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 अर्थ के ऊपर कूलिंग हुआ और कूलिंग होने की वजह से वेपर से एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ जिसमें ऑक्सीजन बना और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स फिर लाइफ में आए. वाटर आया सबसे पहले तो कंडेंसेशन से इन ओशंस, एंड देन एक्वेटिक लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस और वहाँ से धीरे धीरे इवोल्यूशन होके ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस हुआ. पहले एक सेल बना, फिर एक सेल एक साथ में मिलके सब काम करने लगे, उसमें से धीरे 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 टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ में से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स में से ऑर्गन सिस्टम्स बनी और ह्यूमन बींग्स बने, राइट. ऐसे वी ऑल केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट. दिस इज द थियोरी, बिग बैंग थियोरी, ओके. एंड स्लोली वी इवॉल्व मतलब हम लोग दूसरे ऑर्गेनिजम्स में से इवॉल्व हुए. जैसे पहले प्लांट्स आए, देर आर डिफरेंट कनेक्टिंग लिंक्स विच आर बीइंग इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट. कनेक्टिंग लिंक्स है, जैसे प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है वायरसेस. वायरस प्लांट की तरह रहते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं जब वो आपकी बॉडी से बाहर होते हैं, होस्ट सेल की बॉडी से बाहर होते हैं. फॉर एग्जांपल ये कोरोना वायरस को ले लो, जब वो हवा में होता है तो वो एक्टिव नहीं होता है. जैसे ही वो किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, आपकी बॉडी सेल के कांटेक्ट में आता है, तुरंत इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग एंड इट फॉर्म्स इट्स ओन बॉडीज, इट्स ओन कॉपीज, राइट. मतलब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है.
दूसरे वायरसेस उसमें से बनना शुरू हो जाते हैं. तो दैट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल्स, राइट. रिप्रोडक्शन उसका जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ लाइक एनिमल्स, बट देन इट रिमेन्स डॉर्मेंट लाइक प्लांट्स. तो बाद तब वो सेल के बाहर जब वो होता है तब वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखाता है, राइट. सो ऐसे इन्वेंशंस धीरे धीरे होते गए, बट वो कब हुआ? ओनली आफ्टर माइक्रोस्कोप्स वेर इन्वेंटेड. देन बोथ ब्रिक्स इन बिल्डिंग and cells in the living organisms are basic structural units, right. Bricks buildings में और cells हमारी body में are basic structural units. The buildings though built of similar bricks have different designs, shapes and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. Cells in the living organisms are complex living structures, unlike नॉन लिविंग ब्रिक्स, राइट. नॉन लिविंग ब्रिक्स के जैसे नहीं होते, लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स जो होते हैं वो. अ हेन्स एग कैन बी सीन ईजीली. इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स? इट इज़ वन सिंगल सेल. हैन का जो एग होता है, जो आप जिसका ऑमलेट बना के खाते हो या बॉईल करके एग खाते हो, वो एक सिंगल सेल है, उसको जाइगोट बोलते हैं. वो सिंगल सेल डिवाइड होके एक ऑर्गेनिज्म में, एक चिक में कन्वर्ट होता है, राइट. धीरे 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 थोड़े सेल्स जो है वो एक फंक्शन करने लगते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स इकट्ठा होकर के डाइजेशन करते हैं, कुछ सेल्स इकट्ठा होकर के रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ सेल्स इकट्ठा होकर के सर्कुलेशन करने लग जाते हैं. ऐसे करके अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करने लगते हैं और पूरा बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म का वो एग्जिस्टेंस में आता है. अदरवाइज वन सिंगल सेल इज फर्स्ट फॉर्म, दैट इज द जाइगोट, दैट इज जिसमें से पूरा बेबी डेवलप होता है. The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye, right. hen का जो egg है वो ही एक ऐसा सेल है जिसको आप अनएडेड आई, मतलब नेकेड आई, मतलब आप बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख सकते हो. सबसे बड़ा एग पूरे वर्ल्ड में किसका है? ऑस्ट्रिच का है. पता है आपको? ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो सिंगल सेल है, राइट. बट वो सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है वो, right. So that is one single cell which you can see it. Okay, now further. Okay, so now see further. Organisms show variety in cell number, shape and size. How do scientists observe and study living cells? They use microscopes which magnify objects, right. Stains are used to color parts of cell to study the detailed structure. स्टेन्स मतलब क्या? डाइज होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो अगर आप किसी भी टाइप के सेल्स के ऊपर स्प्रे करो तो वो उसका जो कलर है वो पकड़ता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी इजीली विजिबल इन द माइक्रोस्कोप, राइट. सो दैट इज़ वाई ऐसे स्टेन्स को यूज़ करते हैं जस्ट टू magnify the structures. There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. Right, for example, जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल सेल होता है जाइगोट. जाइगोट इज अ सिंगल सेल विच इज डेवलप्ड, विच इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग, और उसके अंदर से पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म का डेवलप होता है, right. Number of cells. Now can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? Millions and trillions of cells hote hain, right. The number runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. Different groups of cells perform a variety of functions. A billion is 1,000 million. A trillion is 1,000 billion, right. Organisms made of more than one cell are called multicellular. That is, multi means many and cellular मतलब cell, right. Organisms multicellular मतलब बहुत सारे cells के बने हुए, that is multicellular. The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of the organisms. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg, right. उसका लाइफ कैसे चालू होता है? सिंगल सेल से चालू होता है. पहले वो एग बनता है, मेल और फीमेल गैमेट इकट्ठा होता है और उसमें से एग बनता है. फर्टिलाइजेशन हैपन्स एंड दैट एग स्टार्ट्स डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट सेल्स. उसका फॉर एग्जांपल एक सेल का 500 सेल हो जाता है, फिर धीरे 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 100 सेल जो होते हैं वो परफॉर्म करने लगते हैं
एक फंक्शन से सर्कुलेशन का फंक्शन शुरू हो जाता है, दूसरे 100 सेल्स होते हैं वो एक्सक्रीशन का फंक्शन करते हैं, दूसरे 100 सेल्स होते हैं वो सर्कुलेशन का फंक्शन करते हैं, डाइजेशन का फंक्शन करते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग काम करने लग जाते हैं, राइट। सो एक फर्टिलाइज्ड एग में से पूरा मल्टी सेलुलर बॉडी तैयार होता है। The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increase as development proceeds. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे ये जो सेल्स है वो ये डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं. लुक एट फिगर्स 8.3 A and B. See 8.3 A and B is given. This is a diagram of a amoeba and this is paramecium. ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म, राइट. ऐसे हमारे बॉडी में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मिलियन सेल्स है. ऐसे अमीबा जैसे नहीं, हमारे सेल्स अलग अलग होते हैं. जैसे स्किन के सेल्स अलग होते हैं, फिर फेस के सेल्स अलग होते हैं, फिर नेल्स के सेल्स अलग अलग होते हैं, राइट. सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं. ओके. सो both organisms are made up of a single cell. The single celled organisms are called unicellular. Uni means one and cellular means cell, right. So this is unicellular organisms, amoeba and paramecium. Paramecium is also called as lady slipper, because वो स्लीपर के, चप्पल के शेप का होता है, इसके लिए. Organisms. A single-celled organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. A single-celled organism like amoeba captures and digests foods, respires, excretes, grows and reproduces. एक सिंगल सेल सारे फंक्शन कर लेता है अमीबा में, जो ये हमने पढ़ा, राइट. अमीबा और पैरामीशियम में भी वही है. बट हमारी बॉडी में हर एक काम करने के लिए अलग अलग सेल्स है, अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है, राइट. सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज. टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स, राइट. टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. Activity 8.1. The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under a microscope. This is possible only in a lab, but this is just for reading that we will do it. They have already given you the diagram of both the organisms. Alternatively, the teacher can collect pond water and show these organisms by preparing the slides. Slides prepare करके भी आप देख सकते हो. Now from shape of cells we shall do it further in the next part. In this part I will stop here. Okay. From shape of cells I will continue further.